Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. So, welcome to your sixth session. Today, we are talking about 20th century English literature. So, as I suggested in the earlier classes, as soon as we are moving towards the modern age, we are having an increase in genres and also increase in the number of writers. So, there are plenty of writers that we're going to talk about today. Again, I'll keep telling you which are important so you can focus on them. But there's so many in number, and there's so many different techniques that are used in 20th century literature. So let's see what they are. So the 20th century opened with hope, but also apprehensions were there because we were approaching new millennium, and humankind was entering in an unprecedented era. So that unprecedented era was the era of technology in which we found so many developments that were going on. So and it was having apprehensions because the same age contained world wars, and this was really very horrible situation for the world, that a feeling of insecurity developed, and it affected literature worldwide, but primarily English and American literature. So it was focusing on both of them. So when we talk about 20th century literature, so it was like no time period before it. Like, it was totally unique, different, and it was totally change. And like, if we read about Einstein, Darwin, Freud, Marx, so they were just some of the thinkers who profoundly changed the Western culture. Freud brought his theory, Darwin, Marx, Einstein. So they basically revolutionized the thinking patterns of the people, and it brought a kind of revolution in the world. So that revolution was felt and is felt even till today. So furthermore, while 20th century literature is a diverse field covering a variety of genres, there are some common characteristics that change literature forever. कुछ कॉमन जॉनर्स भी थे इसमें, लेकिन इसके अंदर ऐसी डाइवर्सिटी थी, इसने लिटरेचर को एक forever it brought a change in that. For example, अब ये 20th century जो है, it is distinguished because it is called the century of urbanism. Urbanism means that people they were already shifting to the metropolitan cities, big cities, लेकिन इस टाइम में आके approaches आसान हुई, travel आसान हुआ, तो many people shifted towards in the main cities, in the capital cities, which brought a revolution of its own kind. And then it was not only happening in Europe but also in America, and novelists use this as a backdrop of their themes. That the same happens in Toni Morrison's jazz, that people are shifting from remote areas to New Harlem or New York, the center of the country. James Joyce short stories, which are a collection in Dublin years. So it is also about that, in what we see, that the people are shifting from rural areas to urban, and the life they're enjoying there or spending there. Then there are so many other writers who are working on the alike themes, similar themes. So there were so many common and important incidents that happened in this age. In 1901, Queen Victoria died. So it was a setback to British Royal Society that Queen Victoria, after so many conquests, she died. And then Boer War started in 1902, and then publication of Conrad's Heart of Darkness. We'll be discussing it later on in the same slide. Also, we'll be discussing it in detail when we'll be discussing the modern novels. And then Peter Pan was first published, and in 1906, Henrik Ibsen dies. He was a great writer. We'll discuss his Hedda Gabler in detail. So that is very important play by him, apart from Doll's House and Arms and Men. 1909, Anton Chekhov's The Seagull. It was first performed. 1911 was the time when expressionism, the technique and the term, was first used. Expressionism is very important. 1914 is a deadly time when
World War One started, and James Joyce Dublin was published properly. And like another thing, Titanic, you must have heard of it. 1912 में Titanic भी डूबा था. It was another setback. So publication of Joyce Ulysses in 1922. इसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये क्या चीज थी. In 1923, Yeats got his Nobel Prize for Literature. So ये उसका एक achievement थी जो कि 1923 में उसे मिली. In 1925, first surrealist group of like art exhibition was there in France. So हम देखेंगे कि ये क्या होता है. Brecht का जो था Three Penny Opera that premieres in Germany in 1928, or Adolf Huxley's Brave New World is published in 1932. So many things were going on at the same time and with very short span of time. In 1936, George V dies, and Ulysses is published openly in Great Britain, all over England. 1939 to 5, another deadly year, when Second World War started. इसके horrors अभी तक हम feel करते हैं. जो important works थे इस time में और important जो writers थे, what they were writing, इसमें Joseph Conrad, उसका Heart of Darkness और Lord Jim, ये बड़े important works हैं. Wilfred Owen, जिसे French poet या war poet भी कहते हैं, उसके Anthems for the Doomed Youth, so उसने in war के हवाले से लिखा. T.S. Eliot, The Wasteland, The Hollow Man. The most important work by him is The Wasteland, जिसको हम discuss भी करेंगे. Or definitely we cannot go through Wasteland like line by line, but I would suggest you to go through my playlist of The Wasteland. और उसमें इसके जो 5 parts हैं उनको एक एक करके अलग line by line describe किया गया है. This is very complex because इसमें बहुत सारे illusions हैं. वो Dido, Queen of Cathra, जो इस तरह के जो बहुत सारे names हमने पढ़े, they are all reflected there. तो उन सब का एक detailed analysis मैंने किया है, textual line by line, so that will help you understand the poem. So do read it from there. Then D.H. Lawrence, उसका Lady Chatterley's Lover, which was banned for a time, और उसके बहुत सारे और works they were published. So ये भी एक 20th century इस literature की age में है. And then W.B. Yeats. W.B. Yeats is important because इसके बहुत सारे important works थे जिसमें we find Byzantium, 1983, then Sailing to Byzantium, The Second Coming, The Wild Swan at Cool. इसकी बड़ी important ये सारे works थे जिसमें हम we get to know about thinking patterns. Irish था वो, और उसने इसमें एक basically Byzantium और Sailing to Byzantium में he talks about the modern man, modern life, और उसके अंदर जो भी horrors हैं और लोग जिस तरह that is not a fit place for elderly people to live, because इस हद तक गुनाह हो चुके हैं, बुराइयां हैं कि वो लोग वहां से भागते हैं. So Byzantium एक उसने imaginary place दिखाई, यानी place तो exist करती थी, यानी कॉन्स्टेंटिनोपल का सारा एरिया, इसने उसको एक imagination में दिखाया. फिर Byzantium में Sailing to Byzantium, when he is going there, poems दोनों बहुत complex हैं, but not that के इतना understandable ना हो. फिर James Joyce के Ulysses in 1922 was very important work. So Ulysses जो है, it was a modernist novel. So James Joyce जो था, he was Irish writer, और पहले ये serial में जिस A Tale of Two Cities शाया हुआ, ये भी serialized था एक American journal में, The Little Review, उसमें publish हुआ, और बाद में फिर ये all over the England इसको publish किया गया. So basically it chronicles the appointments and encounters of Leopold Bloom, जो कि एक main character है Dublin में, जो कि Ireland का, तो उसने Dublin को उसमें लिखा. So Ulysses जो है वो basically Odysseus का दूसरा नाम है. So इसने उसकी poem के हवाले से एक बड़ा एक parallel दिखाया अपने novel को और उस poem को. So इनके अंदर काफी चीजें सिमिलर हैं, वो ट्रैवल और उस तरह की जो सफरिंग्स, इन चीज़ों को इसने इसमें डिक्टेट कराया, दिखाया. सो इसका जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये
उसी तरह का है। सो जो ओडिसियस है उसकी 24 बुक्स हैं। जॉयस अपने नॉवल की 18 एपिसोड्स लिखता है। सो इसलिए ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है और जो कि मॉडर्न नॉवल है, और इसके हवाले से कहा जाता है कि इसने जो इसमें इसकी राइटिंग टेक्निक है दैट मेक्स हिम बियॉन्ड और फार बियॉन्ड एनी अदर राइटर्स ग्रास्प, यानी सबसे प्रोमिनेंट राइटर बना। डब्लिनियर्स भी इसकी एक कलेक्शन है जिसमें इसने 15 शॉर्ट स्टोरीज लिखी और ये 1914 में पब्लिश हुई जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई। सो इसमें भी इसने 20th सेंचुरी एक डबलिन का जो टाइम है उसको इसने डिपिक्ट किया, उसको इसने लिखा। सो ही टॉक्स अबाउट दैट। सो बहुत सारी स्टोरीज हैं, द सिस्टर्स, द एनकाउंटर, अरबी, एवेलाइन, आफ्टर द रेस। So all these short stories move around almost the same themes or those themes which are alike. Just give me a moment. Sorry for inconvenience and interruption because I was sending a link to a student. Keep in mind कि जब आपको लिंक भेजा जाता है तो उसमें that includes some like कि आप टेलीफोनिकली आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं या आप उसे लिंक के जरिए, तो you need to just click the link. So वो उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको इस पे ले आएगा. So that is very easy or quick. So आप उसको ही डील किया करें. Now, like going further, वर्जीनिया वुल्फ। सो वर्जीनिया वुल्फ की जो प्लेज हैं, अब वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस इन दोनों ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज किया। सो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वो टेक्निक है जो कि बेसिकली विलियम जेम्स एक साइकोलॉजिस्ट उसने मुतारिफ कराई, ये एमसीक्यू भी आता है, और ये इन दोनों इनके नॉवेल्स में बेसिकली ये ट्रेट है। सो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज लाइक एक मल्टीट्यूड ऑफ थॉट्स का जो कि ऑथर के माइंड में है और उन्हें वो नॉवल में लिख देता है। सो समटाइम्स इट मिसेस द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सो वी हैव टू फिगर इट आउट के वो किस हवाले से किस सोच को किस तरह बयान कर रहा है। Mrs. Dalloway and To the Lighthouse are important works of Virginia Woolf, written in stream of consciousness, obviously. फिर W.H. Auden, जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिसमें एज ऑफ एंजाइटी, फ्यूनरल ब्लूज। Bernard Shaw is very important name, one of the most important writers ever. So इसमें Arms and Man इसका included है हमारी एक यूनिवर्सिटी के सिलेबस में। Also Pygmalion is also included. So Pygmalion जो है ये इसका one the most important work as far as PPSC is concerned. So Pygmalion basically एक स्कल्पटर था जिसने एक स्कल्पचर बनाया और उससे उसे प्यार हो गया, फिर उसकी वजह से उसमें लाइफ डाल दी गई। सो इसमें दिखाया गया एक फोनेटिक्स के प्रोफेसर हेनरी हिगिंस, जो कि एक रस्टिक लेडी, एक फ्लावर सेलिंग लेडी लीजा डूलिटल को उसकी वॉइस को सुनता है जो कि बड़ी रस्टिक और गांव की तरह की या एक बड़ी गंदे डायलेक्ट वाली लैंग्वेज होती है, उसको वो ठीक करता है और एक डचेस के लेवल पे ले आता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क पिग्मेलियन, इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। और इसमें मैन एंड सुपरमैन, आर्म्स एंड द मैन, डेविल्स डिसिपल, डॉक्टर्स डिलेमा। सो इनकी थोड़ी थोड़ी सी स्टोरी लाइन आपको पता होनी चाहिए। Bernard Shaw is also important in a way कि he was very much interested in English language, और वो इंग्लिश लैंग्वेज की रिफॉर्मेशन चाहता था।
He wanted to mend the spellings, कि वो spellings जो हैं उनकी बेहतरी हो, आसान हो, and he dedicated his property for the same cause. E.M. Foster's A Passage to India. तो ये भी एक बड़ा important work है. Foster का जो Passage to India, it is one of those works जिसमें हमें like we get to know कि एक डिफरेंशिएशन और डिस्टिंक्शन दिखाई गई है कि किस तरह जो पब्लिक है ड्यूरिंग कॉलोनाइज्ड इंडिया, कॉलोनियल इंडिया, जब जहाँ पे गोरे हुकूमत कर रहे हैं, तो किस तरह एक डिस्टिंक्शन रखी गई इंडियंस में, जिसमें मुस्लिम्स और हिंदू दोनों आते हैं, प्लस जो गोरे जो सेटलर्स हैं उनमें. सो ये एक स्टोरी है जिसमें अजीज नामी प्रोटैगनिस्ट जो मुसलमान है वो काफी करीब हो जाता है एक फैमिली के जो कि इंग्लैंड से आती है, और फिर वो सफर करता है एक मिसअंडरस्टैंडिंग को. उसको उस पे जेल भी होती है, उसके ऊपर मुकदमात भी चलते हैं. बहरहाल वो इन द एंड बरी हो जाता है बाइज्जत. सो ये भी स्टोरी है जो कि रीसेंट इंडिया, जो उस जमाने में जो कल्चर जिस तरह था और जिस तरह एक ट्रीटमेंट था इंग्लिश का, वो इसको दिखा रहे हैं. फिर हेनरी गिब्सन, अ डॉल्स हाउस, वाइल्ड डक, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हेडा गैबलर, which is in many universities syllabi. Hedda Gabler जो है, that is a story of psychoanalysis in which there is less outeraction and more interaction. So Hedda Gabler को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. In shorter words, Hedda Gabler एक ऐसी खातून है जो कि जनरल गैबलर की बेटी थी और वो लोगों को मैनिपुलेट करना चाहती थी. So she wanted to have weaknesses of all the people, but she never wanted to give her own weakness to anyone, क्योंकि ये उस चीज से डरती थी. Then we have Chinakasi, जिसका Juno and the Peacock, बहुत important work है. You should know the basic summary of it. And then from American side, we have Robert Frost, one of the most important poets ever. So Frost की बहुत छोटी-छोटी सी poems हैं जो कि basically उसकी poems के अंदर we find conflict, we find nature, we find original settings. ये जो था ये सबसे ज्यादा quoted American poet है, और इसके बारे में जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था, he said that he is our national poet, और he is primarily known as regional poet, क्योंकि जो नॉर्थ हैम्पशायर का एरिया जहाँ पे इसने परवरिश पाई, इसने उसके बारे में बहुत ज्यादा लिखा, उस रीजन के बारे में बहुत लिखा, वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग, वहाँ के बर्ड्स, वहाँ का जो फसलें, ट्रीज, उन सब के ऊपर इसने बहुत कुछ लिखा. इसकी जो पोम है रोड नॉट टेकन, वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में आज भी ग्रेजुएशन में पढ़ी जाती है. सो दैट इज सो फेमस. इवन एचिसन कॉलेज लाहौर के बारे भी आप जाएंगे तो वहां पे यू कैन सी हिज वर्ड्स inscribed as well. Yes, Zunara, you're right. He's called American Wordsworth because he's so close to nature. इसमें और कीट्स में एक चीज कॉमन है कि दोनों एस्केपिस्ट हैं, लेकिन इसका एस्केपिज्म ये है कि ही टेंड्स टू कम बैक टू द वर्ल्ड. ये कीट्स की तरह हमेशा एस्केप की दुनिया में नहीं रहना चाहता, बट ही वांट्स टू कम बैक टू द वर्ल्ड. हाँ, थोड़ी देर के लिए एस्केप को बेहतर समझता है. देन वॉल्टर डे ला मेरे, नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट. एंड देन जॉर्ज ऑरवेल, एनिमल फॉर्म. यस, जॉर्ज ऑरवेल जो है उसका एनिमल फॉर्म विच इज अबाउट रशियन रेवोल्यूशन, रिटन इन 1945. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक. सो ये जो बुक है दैट इज बेसिकली अबाउट सम एनिमल्स जो कि बान में होते हैं, और ओल्ड जॉन्स इनका एक मालिक होता है जो इनसे अंडे भी लेता है, गोश्त भी लेता है, दूध भी लेता है और इनसे काम कराता है. सो ये सारे जो हैं इनको एक पेग जो ओल्ड मेजर होता है, वो इनको एक तरह से तरगीब देता है कि हमें चाहिए कि सारी मेहनत हम कर रहे हैं तो सारी फैसिलिटीज भी हमें हो. वो सारे मिलके जॉन्स को निकाल देते हैं, और सारे का सारा जो फॉर्म है वो जानवरों के कंट्रोल में आ जाता है, इसलिए इसको एनिमल फॉर्म कहा जाता है. फिर ऐसे हम देखते हैं कि खराबियां पैदा होती हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट रशियन रेवोल्यूशन के वो जो कार्ल मार्क्स के आइडियाज थे उनको, और फ्रेडरिक एंजल के आइडियाज को उनको यूज किया गया. उसके बाद फिर उसकी बेस पे रशिया के अंदर ये कम्युनिज्म आया. उसमें इन्होंने जो एक कैपिटलिज्म का खात्मा किया,
कम्युनिज्म को लेके आए, और ऐसा ऐसा फिर उसके अंदर करप्शन शुरू हुई, फार करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट फार करप्ट्स एब्सोल्युटली। और तो ये इसके मेजर थीम्स हैं। Apart from this, let me tell you, all of you, you're so many people in number. So I want one or two of you, okay, who could, if they're willing to give some lectures on this platform. So they're willing, if they're willing, I'll be assigning them some works and they can very much come here and teach. Yes, Miss Mubin, Mohammad Mubin, what do you want to say? सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो आपने भी बोला है कि एनिमल फॉर्म जो है ये रशियन रेवोल्यूशन के बारे में है, तो सर ये एनिमल फॉर्म अगर उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है तो कैन वी कॉल इट एन एलेगरी आल्सो, मतलब या Yes, it एलेगरी is an कोई और allegory. टाइप ये का सारा है ही टेक्स्ट? completely allegorical work है। ओके सर, थैंक यू। जी, क्वेश्चन है कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म क्या होता है। कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म बहुत पुरानी चीज है। कैपिटलिज्म ये होता है कि एक कैपिटलिस्ट होता है जिसकी एक, फॉर एग्जांपल आसान लफ्जों में बता रहा हूँ, कि उसकी इंडस्ट्री होती है, उसमें बहुत सारे फैक्ट्री मजदूर होते हैं जो काम करते हैं, काम सारे वो करते हैं, और जो प्रॉफिट होता है और पैसा वो सारा ले जाता है मालिक, उनको सिर्फ माइनर सी लेबर मिलती है। ठीक है, सो ये है कैपिटलिस्ट सिस्टम। कम्युनिस्ट सिस्टम ये था कि हर बंदा जो है उसमें स्टेट हर चीज को ऑन करेगी, स्कूल्स, बिजनेसेस सारे स्टेट के अंडर होंगे। हर बंदा, ये है कि फ्रॉम एवरीवन अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड टू एवरीवन अकॉर्डिंग टू हिज नीड, कि हर बंदा जो है वो अपनी मेहनत के, हिम्मत के मुताबिक काम करेगा, जो भी काम कर रहा है, और उसे उसकी जरूरत के मुताबिक जो उजरत है या खाना पीना वो मिलेगा। सो इसमें से रुपया पैसे की जो एक, वो जो एक फरावानी थी वो खत्म हो गई। स्टेट ने जिम्मेदारी ले ली अवाम की प्रोटेक्शन की, उनके खाने पीने की, और अवाम ने जिम्मेदारी ले ली काम करने की। सो ये बेसिकली कम्युनिज्म था, लेकिन ये बाद में करप्ट हुआ। चाइना के अंदर कम्युनिज्म चलता रहा क्योंकि दे ब्रॉट सम चेंजेस इन चाइना, लेकिन रशिया जो था उस वो सफर हुआ, और इसलिए रशिया टूट भी गया। देन वी हैव ऑस्कर वाइल्ड। सो ऑस्कर वाइल्ड जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ वे कि इसने बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे जो कि हर सिलेबस में है। फॉर एग्जांपल द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, कॉमेडी ऑफ मैनर प्ले है, जिसमें कॉमेडी ऑफ मैनर के बेसिक सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं। विल बी डिस्कसिंग इट इन डिटेल सेपरेटली। द हैप्पी प्रिंस, आई सजेस्ट यू टू गो थ्रू इट। आप में से कई लोगों ने शॉर्ट स्टोरी पढ़ी होगी और कईयों ने नहीं भी पढ़ी। I recommend you before sleeping today, you should be reading this, or at least you can watch it on YouTube, animated form में. So that is really very like helping, or like that is very fascinating kind of story, जो कि विक्टोरियन इंग्लैंड के ऊपर है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हर तरफ गुर्बत है, और फिर एक प्रिंस जो कि सोने का, जो किसी जमाने में जिंदा होता है लेकिन अब वो उसका स्टैचू होता है जो सोने का बना होता है। तो वैसा ऐसा एक अबाबील को कह के सवालों के जरिए एक अपने, यानी ऊपर से थोड़े थोड़े पीसेस उतार के गोल्ड के गरीब लोगों में बांटता है। तो बाय द एंड ही इज वर्थलेस स्टैचू, लेकिन बड़ी कैचिंग स्टोरी है। जी नसीम रियाज, यू वांट टू से समथिंग? I want to add it that this is also included in sixth class syllabus nowadays. And when I was in the ninth class, that was included in my syllabus, and nowadays it is in the sixth class syllabus. Exactly, but Yes sir, unfortunately, so many of us that are was an beyond abridged ninth and version. 6th. Yes, That exactly. was not the So whole हम में story, से that कई was लोगों ने इसको an भी नहीं abridged भी पढ़ा version. हुआ, so I'm recommending all those जो कि उसको पढ़ना चाहते हैं तो वो उसको पढ़ सकते हैं। Okay, so going further in the same pace, Rudyard Kipling, he was born in India and he's known for his stories. Basically, his stories are about little kids. So इसमें जंगल बुक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इसके वर्क्स में, जो कि इसके लाइक इसके ऊपर बहुत सारी एनिमेटेड मूवीज, कार्टून्स बने। 1910 में एक इसका वर्क था इफ। इफ इज अ हाईली क्लासिकल काइंड ऑफ पोएम बाय किपलिंग। ये भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इसको जरूर पढ़िएगा। इट इज मोर देन वंडरफुल वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इसका, इफ नाम से नज़म। Then on American side, we find Eugene O'Neill, a psychoanalytical किस्म के इसके works हैं. He writes about following the Freudian concept, of Freudian theory,
सो फ्राइड की जो थेरीज हैं वो लागू होती हैं इसके वर्क्स पे, खास पे लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, विच इज एज टाइटल सेज कि जर्नी जो है डे से नाइट में, यानी ऑप्टिमिज्म से पेसिमिज्म में। सो दैट इज वन डे स्टोरी जो कि एक फैमिली की है जो आयरलैंड में शिफ्ट होते हैं, और वैसे ये अमेरिका में रहते हैं। तो वहां पे एक पूरे दिन की कहानी जो कि बड़ी हैप्पी बिगिनिंग से होती है, लेकिन उसकी एंडिंग इंतहाई पेसिमिस्टिक होती है। सो ये इसकी रियल लाइफ स्टोरी है, यूजीन ओनील की, उसकी ऑटोबायोग्राफी है। मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। सो मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा जो है दैट इज अ ट्रायोलॉजी, 3 प्लेज हैं इसके। होम कमिंग से स्टार्ट होता है। होम कमिंग इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, और ये जो है ओरेस्टिया जो ग्रीक ट्रेजेडी थी उसके ऊपर बेस्ड है। वो भी 3 प्लेस थे, ये भी 3 प्लेस हैं। सो दिस ट्रायोलॉजी इज बेस्ड ऑन दैट। और जो एगामेम्नॉन जो घर पे आता है अपने, और जहाँ पे उसका मर्डर होता है, ये स्टोरी उस सीन पे बेस्ड है प्राइमरीली, वो इसका मेन सीन है। सो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। एंड देन अर्नेस्ट हेमिंगवे। सो हेमिंगवे जो है दैट इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड अमेरिकन राइटर। इसकी जो फिलोसफी ओल्ड मैन इन द सी में है, हालांकि ओल्ड मैन इन द सी काफी बाद में लिखा इसने, जिसमें वो कहते हैं मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। सो लेकिन उसके जो प्लेस, जो नॉवेल्स पहले लिखे, फॉर एग्जांपल फेयरवेल टू द आर्म्स, फॉर हुम द बेल टोल्स, सन आल्सो राइजेस, इन सब को हम डिस्कस भी करेंगे। द किलर्स शॉर्ट स्टोरी उसकी ग्रेजुएशन के सिलेबस में बड़ा अरसा रही 1927 में। हैरत अंगेज तौर पे ये जो एंड में ओल्ड मैन इन द सी लिख रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इसका, उसमें जो इसकी फिलॉसफी है वो ये फिलॉसफी एंड में दे रहा है, लेकिन ही स्टिल सफरिंग फ्रॉम those philosophies which he gave in 1927, 26, 29, and in the end, just like a common war hero or a common person who returned from war, he kills himself. So he basically attempted suicide and he killed himself. Huxley, A Brave New World or Adonis and the Alphabet, you should know about the themes of them, not the details. Faulkner जो है इसके बारे में भी उसका जो द हैमलेट है उसकी अगर आप स्टोरी थोड़ी सी पढ़ लें, दैट इज गुड, बट अगेन नॉट मच इंपॉर्टेंट। 20th सेंचुरी में हमारे पास है ट्रेंच पोइट्स। सो ट्रेंच पोइट्स में हमारे पास साइगफ्राइड सेजून एंड विल्फ्रेड ओवन। ये जो हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि ये ट्रेंच पोइट्स से इनके बारे में कोई ना कोई एमसीक्यू आ जाता है। तो ये बेसिकली इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने उस जमाने की जो वॉर्स थी, स्पेशली वर्ल्ड वॉर्स, उनको फोकस किया। और फिर हमारे पास इमेजिस्ट्स। सो इमेजिस्ट्स कौन थे? ये एक रिवोल्ट थी विक्टोरियन मूवमेंट के अगेंस्ट, या विक्टोरियन जो पोइट्री थी उसके अगेंस्ट। दिस वाज अ न्यू काइंड ऑफ like initiation of poetic work. So it was a movement in early 20th century. So Anglo-American poetry में यानी अमेरिका में थी और इंग्लिश में भी थी। So basically it was it favored a precision of imagery and a clear sharp language. कि imagery बड़ी clear होनी चाहिए, जिसका नाम suggest करा imagism, कि बड़ी क्लियर इमेजरी को पसंद करते थे, यानी वेग इमेजेस को पसंद नहीं करते थे, सिंबॉलिक काइंड ऑफ। सो ये क्लियर इमेजरी को पसंद करते थे, शार्प लैंग्वेज को पसंद करते थे, और ये जो एक सेंटिमेंटल एक वे ऑफ राइटिंग था विच वाज देयर इन रोमांटिक पोइट्री और इन विक्टोरियन पोइट्री, उसको ये इग्नोर करते थे। सो दे वर अगेंस्ट दैट। ये इसमें जो इम्पोर्टेंट है रपाउंड है, हुम है, फ्लिंट है, ये इसके जेम्स जॉयस ने भी पोइट्री की, सो ये उसके अंदर शामिल हैं। फिर हमारे पास है जॉर्जियन पोइट्स। सो जॉर्जियन पोइट्स वो जो कि जॉर्ज 5 के टाइम में लिख रहे थे। सो ये चूंकि एक खास टाइम में आए, इस पर्टिकुलर टाइम में आए, तो इनको जॉर्जियन पोइट्स कहा जाता है, बट अगेन दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब आयरिश ड्रामा जो था इन 20th सेंचुरी, ये लाइक थिएटर्स में लंदन में, डबलिन में, हर जगह पे प्रोमिनेंट था। और इसमें बहुत सारे नेम हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल मिलिंगटन है, विलियम बटलर येट्स है,
शेन ओकॉसी हैं, ये सारे वो थे जो आयरिश थीम्स के ऊपर लिख रहे थे। और आयरिश जो ड्रामा हर लिहाज से बहुत ज्यादा पॉपुलर था। और जॉर्ज बर्नर्ड शॉ, ही वाज आल्सो एन आयरिश, और उसके ड्रामास जो हैं वो ब्रिटिश सोसाइटी के तमाम तरह एस्पेक्ट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। सो बेसिकली जो आयरिश पीपल हैं, इसमें इनका एक बड़ा रोल था जो कि इस सोसाइटी पे था। फर्दरमोर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नॉन आयरिश थे, लेकिन जैसा टी.एस. एलियट है, अमेरिका में पैदा हुआ, लेकिन ही वाज आल्सो लाइक इंग्लिश पोइट भी है, अमेरिकन पोइट भी है, क्योंकि उसने इंग्लैंड में भी काफी लाइफ गुजारी। फिर पॉलिश पोइट जो है, पॉलिश नॉवेलिस्ट कॉनरड, जोसेफ कॉनरड। तो ये बहुत सारे लोग हैं जो कि मुख्तलिफ एरिया से ताल्लुक रखते थे, आयरलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, पोलैंड। ये सारे वो थे जिन्होंने ब्रिटिश सोसाइटी को बड़ा करीब से देखा और उसके ऊपर बड़ा इम्पोर्टेंटली लिखा। सो इनमें 20th सेंचुरी में जो फाइनेस्ट पोइट जिसको कहा जाता है वो ही वाज W.B. येट्स, जिसकी पोइट्री जो है इसमें हम देखते हैं एस्थेटिक कंसर्न्स हैं और रोमांटिक विजन है, उसमें कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इश्यूज भी वो डिस्कस करता है। फिर उसमें हमारे पास जो लेटेस्ट जो थीम्स जो डेवलप हुए जिसमें साइंस की तरक्की है, उसको H.G. वेल्स, जिसका द इनविजिबल मैन, गायबी आदमी, ये बड़ा मशहूर हुआ था। हॉलोमैन मूवी भी इसके बेस पे बनी थी। सो ये बड़ा एक साइंस की इनोवेशन के ऊपर उसने लिखा। टाइम मशीन लिखी उसने, जो कि टाइम मशीन का एक कॉन्सेप्ट जो था कि इंसान टाइम ट्रेवल कर सकता है। फिर कॉनरड इस टाइम में लिख रहा था, जिसने स्केप्टिसिज्म दिखाया, उसने एक सिनिकल अप्रोच दिखाई और सोसाइटी को टारगेट किया। अब वर्ल्ड वॉर जो थी, दैट शूक इंग्लैंड टू द कोर, इंग्लैंड को उसने बिल्कुल हिला के रख दिया, और ये बड़ा इन्फ्लुएंस था इसका लोगों पे। फ्रेंच पोइट्स इसी वजह से सामने आए कि वो वर्ल्ड वॉर को लिख रहे थे। और टी.एस. एलियट का जो है द वेस्टलैंड, वो इसलिए था कि जो अमेरिका और इंग्लैंड जो कि दोनों वर्ल्ड वॉर में थे, उसके जो हॉरर्स हुए उसके बाद जो इनका सोशल, मॉरल और इकोनॉमिक जो इनकी कंडीशन रही, उनके बारे में वो एक डिटेल क्रिटिसिज्म करता है। यूलिसियस जो था वो उसमें भी ही टॉक्स अबाउट सच थिंग्स, जो कि सोसाइटी को डिपिक्ट कर रहा है कि सोसाइटी किस तरह है, एक नैरेटिव फॉर्म में वो रेवोल्यूशनरी आइडियाज को प्रेजेंट करता है। सो दिस वाज ऑल गोइंग थ्रू इन दैट एज। We have psychological subtlety that was there in Virginia Woolf, E.M. Foster। ये जितने भी नाम हैं, ये मुख्तलिफ नामों के साथ साथ मुख्तलिफ थीम्स जो थे इनके वो डेवलप थे, और ये सोसाइटी को बड़े ही एक डाइवर्स अंदाज में मुख्तलिफ थीम्स दे रहे थे। यानी यू सी कहीं पे एनिमल फॉर्म लिखा जा रहा है जो कि एक एलेगोरिकल वर्क है, कहीं पे आयरिश जो है सिचुएशंस उनको सामने लाया जा रहा है, कहीं पे वर्ल्ड वॉर पे लिखा जा रहा है, कहीं पे नई जॉनर्स की डेवलपमेंट हो रही है। सो दिस वाज full of so many important people and important works they were going on. Then यहाँ पे हमारे पास एक important movement आई which is called Surrealism. So Surrealism was an avant-garde movement. आर्ट में भी, लिटरेचर में भी। avant-garde क्या होता है? avant-garde होता है एक रेड किस्म की, जो कि एक या एक जिद्दत पे मबनी इस तरह की। सो इट वाज अ कल्चरल मूवमेंट जिसने जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद तकरीबन ये डेवलप हुई यूरोप में। वर्ल्ड वॉर 1 के असरात की वजह से, यानी उसके जो रिजल्ट थे उनकी वजह से इसकी डेवलपमेंट हुई। और ये बेसिकली आर्टिस्ट इसमें क्या डिपिक्ट करते हैं कि इसमें इलॉजिकल सेंसेस और टेक्निक्स जिसको वो बेसिकली अनकॉन्शियस माइंड को एक्सप्रेस करते हैं उसके जरिए, यानी इलॉजिकल किस्म की उसमें तस्वीर बना देंगे, कुछ उसमें अंदर ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, लेट मी शेयर अ पिक्चर विद यू दैट इलस्ट्रेट्स दिस थिंग। सो लेट मी ऐड दैट टू इट। उसके लिए बड़ा सिंपल है, आप अगर जाके अपने फोन्स पे, अपने गूगल पे सररियलिज्म को टाइप करके उसके इमेजेस में जाएं, you will get to know what kind of art I am talking to. So I am adding the picture very much here in the browser. I'll delete it afterwards. So you can see. So this picture is here.
So this is in front of you. So this is what I mean कि वो एक ऐसे यानी एक illogical manner में images portray करते थे जिसमें जो कि उनका एक क्रिएटिव पोटेंशियल माइंड, जो एक अनकॉन्शियस माइंड की थिंकिंग है, वर्किंग है, वो सामने आती थी. सो आई होप दैट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. ये यस, सो इसमें बेसिकली क्या है, ये वो चीजें हैं जिसमें हम देखते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड का पोटेंशियल क्या है. यानी हमारे कॉन्शियस माइंड का पोटेंशियल हमें पता है, but there's also our unconscious mind, जिसका जो potential है we don't know. So some writers or some artists, they try to explore the potential of their unconscious mind, and they use this technique which is called surrealism. So surrealism is that technique. Okay, और इसमें yes, melting rock का भी एक theme था. Yes, you're very right कि एक melting clock है जो कि melt हो रही है. That is basically a depiction of time in some different manner. Then stream of consciousness, जो कि एक बंदे की thought है, जो कि बड़ी varied किस्म की thoughts हैं. एक multitude है उसका thoughts का, जो कि कहीं ना कहीं से चलता जा रहा है. So विलियम जेम्स ने अपने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में ये टर्म फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की थी. सो वो उसका बानी है. So ये बेसिकली इवेंट्स जो होते हैं इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं होते. दैट इज ओनली अ फ्लो ऑफ थॉट. जिस तरह हम बैठे सोच रहे होते हैं, कभी पास्ट, कभी प्रेजेंट, कभी फ्यूचर, एंड वी आर फ्रीक्वेंटली स्विचिंग. सो दैट इज हाउ इट इज. देन हार्लेम रेनेसेंस. हार्लेम रेनेसेंस क्या था? So it was intellectual, social and artistic explosion that entered in Harlem. यानी मैनहट्टन सिटी के एरिया को, उस न्यूयॉर्क के आसपास के एरिया को हार्लेम और मैनहट्टन, ये दोनों नाम दिए जाते हैं. तो 1920s का टाइम था, और इस टाइम में एक न्यू नीग्रो मूवमेंट डेवलप हुई. बहुत सारे लोग जो थे, चूंकि गोरों के और कालों के तजादात चल रहे थे, नस्ली कत्ल वगैरह थी, जो काले थे वो मुख्तलिफ इलाकों से निकल के यहाँ पे आ रहे थे मेन सिटीज में, क्योंकि यहाँ पे कुछ लॉस थे, प्रोटेक्शन थी. फिर उनमें से वो लोग जो कि पढ़े लिखे थे, उन्होंने रिवाइवल किया, नज़में लिखी, वर्क्स लिखे, नॉवेल्स लिखे, और अपने जो कल्चर्स थे उनको इन्होंने एक तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में लेके आए. सो दिस वाज, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिनेसेंस, के वो जो उनके अपने कल्चर और उनकी रसूमात का, उनके ट्रेडिशंस का, उनके अकायद का, उनको जो इन्होंने दोबारा से पोर्ट्रे किया इंग्लिश में. सो इट वाज दैट रिनेसेंस दैट वाज डेवलप्ड इन अमेरिका. एक्सप्रेशनिज्म की हमने बात की. सो एक्सप्रेशनिज्म वाज अनदर टेक्निक दैट वाज डेवलप्ड इन दिस वेरी एज. सो एक आर्टिस्टिक स्टाइल था जिसमें आर्टिस्ट जो है, he seeks to depict not objective reality but rather subjective emotions and responses that objects and even arouse within a person. So basically he talks about those realities जो कि एक यानी realities को basically objective अंदाज में ना देखना, बल्कि subjective emotions लेके आना. So this is how such people did, कि उन्होंने subjectivity को सामने रखा, अपने इमोशनल थिंकिंग्स को सामने रखा. ये जो थी एक्सप्रेशनिज्म, दैट वाज नॉट ओनली इन लिटरेचर बट आल्सो इन आर्ट. इसकी भी बहुत सारी यानी पेंटिंग्स आपको अवेलेबल होंगी, यू कैन सी देम ऑन गूगल. सो इसमें बेसिकली पोइट्री और पेंटिंग, इनमें ये सबसे पहले आए, और नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज में 20th सेंचुरी की बिगनिंग में इसने इनिशिएशन की. और इसकी टिपिकल ट्रेट बेसिकली जिस तरह मैंने बयान की कि दुनिया को इस तरह प्रेजेंट किया जाए एक सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से, और इसमें इसको डिस्टॉर्ट करके और कुछ इमोशंस को सामने लाया जाए, इमोशंस को जगाया जाए जो कि इंसान के इमोशंस हो सकते हैं. सो बेसिकली इसके ऊपर बहुत सारा वर्क भी हुआ एक्सप्रेशनिज्म पे, बिकॉज एज द नेम सजेस्ट, एक्सप्रेस करना, अपने एक्सप्रेशंस को सामने लाना. सो व्हेन वी ब्रिंग आवर ओन एक्सप्रेशंस, तो वो सब्जेक्टिविटी होती है, वो फिर ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती. कॉलोनियलिज्म अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि बाद में आया. फिर इसके ऊपर पोस्ट कॉलोनियल वर्क्स, जिसको आगे हम पढ़ेंगे अभी. सो ये एक पॉलिसी थी एक कंट्री की जिसमें वो अपनी अथॉरिटी को एक्सटेंड करता है दूसरे मुल्कों में, टेरिटरीज में, और वहां पे लोगों को कॉलोनाइज करता है, फिर उन पे इकोनॉमिक और रिलीजियस प्रेशर डालता है,
उनके खैर को छीनता है, ये जो सारे थे, इनके ऊपर कॉलोनाइजर जो थे, जिसमें चीफली इंग्लैंड एंड अमेरिका, अमेरिका तो बाद में हुआ, इंग्लैंड खास तौर पे जिसने, और फ्रांस मुख्तलिफ मुल्कों पे काबिज रहे, सो इनके ऊपर भी बेशुमार लिटरेचर लिखा गया। फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म, सो एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है एक फॉर्म ऑफ फिलोसॉफिकल इंक्वायरी that explore the nature of existence by emphasizing human being as a subject. So not merely the thinking subject, but acting, feeling, living human individual की human individual की existence क्या है? The way we find the things happening in Waiting for Godot. So that is almost the same thing, जिसमें हम देखते हैं कि एक इंसान की existence के ऊपर questions हैं, उसको एक stereotypical life गुजार रहा है, उसके अंदर boredom है, उसके अंदर repetition है, और उसके he does not know why he is living for or what he is waiting for. So ये एक existence के हवाले से एक philosophy थी जो कि literature में बहुत ज़्यादा popular हुई. So these were major things from 20th century literature. So ये 20th century जो literature था उसके ये important characteristics थे. And then in a quick way we'll be switching to contemporary literature, because इसके साथ अगर हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो ये चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी. Contemporary जो literature है, I'm sharing my slide with you. Yes, this is heavy dose, but ट्रीटमेंट को बेहतर बनाने के लिए हैवी डोज लेनी पड़ती है. सो दैट वाज अ मैसेज केम हियर. ओके जी, सो अब जो कंटेम्प्रेरी पीरियड है, सो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1939 टू प्रेजेंट, यानी 1939 से आज तक, जिसके अंदर पोस्ट कॉलोनियल पीरियड भी है और आज तक का टाइम, आजकल का पीरियड, दे आर बोथ इंक्लूडेड. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? वर्ल्ड वॉर एंडेड, बॉम्ब्स गिरे जो हिरोशिमा नागासाकी पे, दैट डिक्लेयर्ड दैट वर्ल्ड कुड एंड एनी टाइम. न्यूक्लियर वॉर का खतरा, और उसके बाद जो एक बदअमनी और ये जो चीज़ एक इनसिक्योरिटी शुरू हुई जो कि 20th सेंचुरी में भी थी, लेकिन दैट हैड एन इंक्रीज, और वो बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का इंक्रीज हुआ. इसमें एक बड़ी जो चेंज आई कि रशिया की जगह और इंग्लैंड की जगह यूएसए सामने आया एक मेजर इकोनॉमिक फोर्स के तौर पे. यूके वीक हो गया. इंग्लैंड के जो क्लैशेस थे उसके अंदर शुरू हो गए, मसलन रिच और पुअर के दरमियान, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान, स्पेशली इन आयरलैंड, एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड के दरमियान, क्योंकि अब इंग्लैंड वो इंग्लैंड नहीं रहा था. अब इसकी कमर टूट चुकी थी और अब इसके पास वो वाली ज़खायर और वो वाली अपॉर्चुनिटीज नहीं थी जो किसी ज़माने में लोगों के लिए मौजूद थी. अब अगर हम इनको पढ़े ना तो देयर आर लाइक दिस इज सच एन एरा कि जिसको समझना इंतहाई कॉम्प्लेक्स है. लाइक पुरानी चीजें जिनमें हम नहीं रहे, आयरनी ये है कि उनको अंडरस्टैंड करना इजी है, लेकिन जिन चीजों को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं उनको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये चीजें हालांकि दैट शुड हैव बीन मेड इजी, लेकिन ये जो राइटर्स हैं इन्होंने इतना कोई डिफरेंट तरीके से ये बयान किया, सारा सेटअप इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से कि दे मेड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू लिव. फिलिप लाकिन की जो एक पोम है जिसको हम देखते हैं मिस्टर ब्लीनी जो है, उसमें हमें एक चीज बड़ी क्लियर नजर आती है कि दैट शोज द लाइफ ऑफ अ मॉडर्न मैन, कि मॉडर्न मैन की लाइफ बेसिकली जो कि टी एस एलियट ने ऑलरेडी बयान कर दी, ये वही मॉडर्न मैन है जो कि एक कमरे में पड़ा हुआ है और उसके पास कुछ भी नहीं है, किराए के घर में रहता है, मैंने कटी उम्र होटलों में मरे अस्पताल जाके. सो द सेम इज केस विद द मॉडर्न मैन विच इज शोन इन मिस्टर ब्लीनी. फिर ये जो MCMXI4 ये जो है बेसिकली XIV यानी 1914, दैट इज बेसिकली अबाउट वर्ल्ड वॉर. इंतहाई कमाल और खूबसूरत पोम है ब्लीनी की, फिलिप लार्किन की, दो आई डोंट एग्री विद all these poets like the way they write very complex ones, लेकिन this poem is good in a way कि इसमें he tells about the innocence of people and he says कि never such an innocence was seen ever, कि ये वो लोग थे, एक तस्वीर वो दिखाता है बेसिकली.
फिलिप लार्किन की पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें ये नज़म भी है, मेरे चैनल में देख लीजिएगा। वो एक पिक्चर दिखाता है जिसमें लोग जंग अजीम में शामिल होने के लिए एक बड़े से ग्राउंड में खड़े होते हैं, और ये सारे वॉलंटियर्स हैं, कोई प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जॉबलेस है, स्टूडेंट है, रिटायर्ड है। ये सारे लोग बड़े वो हैं इंथुजियास्टिक कि हम जंग के अंदर जाएंगे और जंग का हिस्सा बनेंगे। तो ये उस लिए जंग के अंदर बड़ा यानी एक स्पिरिट लेके जा रहे होते हैं। और वो जो तस्वीर है, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर, उसमें देखेंगे तो उनके चेहरे बड़े मुस्कुरा रहे होते हैं, जैसे वो एक बैंक हॉलीडे पे आए हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं, एक वन डे आउट समर, ऊपर से धूप निकली है और बड़ा मजा आ रहा है उन्हें। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसी इनोसेंस फिर कभी नहीं आएगी, क्योंकि दीज पीपल डिड नॉट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू देम। वो तो जब ये लोग जंगों में जाएंगे तो इनको पता लगेगा, क्योंकि ये लिखी तो जंग के बाद हुई थी, और तस्वीर इसको बाद में मिली तो इसने उसके ऊपर लिखा कि इनके साथ क्या बनी होगी जब ये जंग पे गए होंगे। उनको ये दिन याद आता होगा कि वो कौन सा मनहूस दिन था जब हम उस सिलेक्शन बोर्ड के आगे खड़े थे। यानी ये वो खुशी अब इनकी और ये इनोसेंस वापस नहीं आ सकती। इतने इनोसेंट थे कि दे डिड नॉट नो व्हाट इज गोइंग टू बिकम ऑफ देम। टेड ह्यूज जो है, उसकी एनिमल इमेजरी बड़ी मशहूर है। उसमें थॉट फॉक्स और स्नोड्रॉप, नाइट राइड, हॉक्स रूस्टिंग, टेलीग्राफ वायर्स। थॉट फॉक्स इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पोम है, जो कि he talks about a fox that is coming to him and he's standing right in the middle of a jungle and he's trying to write something, his paper is yet empty। वो फॉक्स आती है, उसकी ग्रीन आइज नजर आती है और फॉक्स छलांग मारती है उसके माइंड के अंदर और पेपर भर जाता है। सो दैट शोज के फॉक्स इज लाइक कम्स लाइक अ क्रिएटिव एक्टिविटी, क्रिएटिव एबिलिटी, क्रिएटिव थिंकिंग, जो कि उसके माइंड में आती है तो वो सोचता है और फिर लिखता है। जॉन एशबरी इसी टाइम के अंदर इंतहाई इंतहाई एक कंफ्यूजिंग किस्म की राइटिंग्स इसकी, सेल्फ पोर्ट्रेट ऑन अ कॉन्वेक्स इन अ कॉन्वेक्स मिरर। अब ये लिखे है प्रीमैग्नियो वाज एन इटालियन आर्टिस्ट। तो उसने दिखाई कि उसने अपनी डिफॉर्मिटी जो थी वो रिफ्लेक्ट की हुई थी। इसकी डिफॉर्मिटी क्या थी कि उसका एक हाथ जो था वो बाकी जिस्म से बड़ा था, तो उसने आगे रख के एक लकड़ी पे अपनी तस्वीर बनाई और शो ऐसा किया कि एज इफ इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में जिस तरह आप करीब की चीज ज्यादा बड़ी हो जाती है और पिछली चीज पतली हो जाती है, इस तरह उसने अपने आप को ड्रॉ किया। वो सेल्फ पोर्ट्रेट जो है एक म्यूजियम में है जिसके ऊपर इसने ये नज्म लिखी। द पेंटर जो है दैट इज अबाउट इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, के इंडिविजुअल और सोसाइटी की आपस में क्या जंग है, किस तरह एक दूसरे से लड़ते हैं। पेंटर कुछ बनाना चाहता है, सोसाइटी उससे कुछ बनवाती है, वो अपनी मर्जी करता है तो मार खाता है, और जब सोसाइटी की मर्जी करता है तो दिल से खुश नहीं होता, सोसाइटी खुश हो जाती है। फिर वेट केसमेंट्स, ये वो पोम है जो कि आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी एक्सेप्ट इन माय चैनल। सिर्फ मैंने इसकी हिम्मत की अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर काम करने की। सो हाईली कॉम्प्लेक्स पोम जिसमें देयर आर सो मेनी इमेजेस, वो उनमें बहुत सारे इमेजेस पे बात करता है, एक वेडिंग से लेके एक ब्रोकन ब्रिज तक, और उसके दरमियान बहुत सारे इमेजेस हैं जो शिफ्ट होते हैं। बेसिकली पेसिमिज्म जो है वो इसकी पोम्स में है। एड्रियाना रिच, जिसका Aunt Jennifer Steigers or Diving into the Wreck, she is American poetess and she basically writes about women emancipation, ख्वातीन की आज़ादी, ख्वातीन की जो है लाइक अपने पाँव पे उनका खड़ा होना, उनको मुआशरे में जो मुकाम मिलना। सिल्विया प्लैथ एट द सेम टाइम इज राइटिंग अबाउट सेम थिंग्स। उसकी बहुत सारी पोम्स, स्पेशली बी पोम्स बड़ी मशहूर हैं, जिसमें बी मीटिंग, अराइवल ऑफ द बी बॉक्स, और स्टिंगा जिसमें शी टॉक्स अबाउट के एक जो है किस तरह एक खातून जो है वो बीज से इंटरेक्शन करती है और फिर वो जो लोग उसको देख रहे हैं उनके पीछे बीज पड़ जाती हैं। ये बीज बेसिकली वो ख्वातीन हैं जो कि गुस्से में हैं कि मेल कम्युनिटी उनको आगे नहीं आने देती। और इसकी बहुत सारे जो वर्क्स हैं जिसमें फॉर एग्जांपल डैडी, जिसमें वो अपने बाप से नफरत का इजहार करती है और अपने हस्बैंड से भी, जिसमें इसका हस्बैंड जो है टेड ह्यूज जो है, जिससे इसकी रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट थी बट दैट लेटर टर्न्ड इनटू अ हॉरिबल ड्रीम। फिर इनकी डिवोर्स हुई। फिर इसमें इसकी एक पोम जिसमें लेडी लाजरस, जिसमें शी टॉक्स अबाउट अगेन विमेन इमेंसिपेशन थीम के पीपल आर मिसट्रीटिंग विमेन बट वन डे विल कम व्हेन we will rise from ashes like a phoenix and we'll kill the male society, और हम उनके बराबर आ जाएंगे।
सो बोहोस एरियल इसकी पोम जो कि इस पे टेड ह्यूज ने भी लिखा, इसने भी लिखा, एरियल इनके घोड़े का नाम था। सो उसके ऊपर भी इसकी पोम है। तो ये सारी नज़में बेसिकली वो हैं जिनको पढ़ने के बाद यू कैन नॉट ग्रास्प द मीनिंग sorry, until or unless you know the philosophy of these writers के इनकी thinking क्या थी, सोचते क्या थे। Thrice she tried committing suicide and finally she killed herself. तो इसने अपने आप को मार दिया, वरना और इसने ऐसी नज़में लिखनी थी जो समझ ना आती। फिर जॉन हर्शरी, फ्लैनरी ओ'कॉनर, ये सारे नाम ये they will be sent to you but they're not important. अभी बहुत सारे नाम है। This age is filled with those names जो कि एग्जिस्ट करते हैं बट यू नीड नॉट पे मच अटेंशन टू देम। इस पूरी लिस्ट में एलिजाबेथ बिशप की वन आर्ट दैट पोम इज इम्पोर्टेंट, एंड देन टोनी मॉरिसन इसका जो है जैज दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि तकरीबन काफी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में है। जैज के ऊपर हम सेपरेट डिस्कशन करेंगे डिटेल्ड। अच्छा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इसका जो है he is important, is very important figure in history, लेकिन इसका अगर आपने कुछ पढ़ना है तो वो लेटर फ्रॉम बर्मिंघम सिटी जेल से ज्यादा आई वुड सजेस्ट यू टू गो थ्रू हिज स्पीच जो उसने एक जगह पे की, आई हैव अ ड्रीम। और वो इतनी जबरदस्त स्पीच थी कि ही वाज नॉट गिवन मच चांस टू स्पीक इन दैट, लेकिन उसकी स्पीच को बहुत बड़े बड़े लोगों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी स्पीच को कंसिडर किया गया। आई हैव अ ड्रीम। जी मुबीन। सर ये इसका जो आई हैव अ ड्रीम जो ना, ये भी एफए के कोर्स में शामिल है, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में ना, ये उसका है। ओके ओके, वहाँ दैट्स से भी पढ़ी वंडरफुल। जा। अगर है तो वो तो फिर आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। ओके जी, सो गोइंग फर्दर इन दैट, आर्थर मिलर, इसके बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिसमें डेथ ऑफ अ सेल्समैन, जो कि ही इज टॉकिंग अबाउट अमेरिकन ड्रीम, और एक फैमिली जो कि अमेरिकन ड्रीम में सफर कर रही है और एक क्रश हो जाती है उसी में। विली लोमैन, एक सेल्समैन की कहानी, डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। द क्रूसिबल, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, विच इज अबाउट दोज प्यूरिटन जिनका मैंने बताया था शुरू में हिस्ट्री में। वो प्यूरिटन्स जो अमेरिका में सेटल हुए और वहां पे उन्होंने वही फनेटिक किस्म का चर्च का रवैया रखा, और जो सैलम विचेस जो मशहूर हुई विच क्राफ्ट की बेस पे जो बहुत सारे बंदे मार दिए गए, विल डिस्कस दैट एज वेल। और इसमें एक इंपॉर्टेंट नेम है तो वो है दैट इज ऑफ एलिस वॉकर, जिसका एवरीडे यूज ये इंपॉर्टेंट है। And then again another list of people who were there in the age but you need not pay much attention to them. Yes, इसमें जो है टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ये आपके कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में बड़ा आजकल इन है। इसके हवाले से यू नीड टू हैव द स्टोरीज, स्टोरी का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आपको कुछ पता हो इसका। एंड देन इन दिस नो वन इज so particular, जिसको आप तैयार करें। And then there is a long list of so many people involved. So ये वो लोग हैं सब के सब जो कि कंटेम्प्रेरी एज में थे या हैं, कुछ मर गए, कुछ लिख रहे हैं। There's so many names, लेकिन कंटेम्प्रेरी एज में ये जो जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं उनके अलावा अगर इफ यू हैव टू पे अटेंशन, सो यू नीड टू पे अटेंशन टू साउथ एशियन राइटर्स, जो कि लास्ट टाइम हुआ, उनको हम सामने रखेंगे। ओके जी, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दिस इज वेरी लेंथी लेक्चर ऑन इट, जिसमें हमारे पास आयरनी है, प्लेफुलनेस और ब्लैक ह्यूमर। तो इसमें बेसिकली जो आयरनी है, यू नो, प्लेफुलनेस का भी आपको पता है, ब्लैक ह्यूमर जो है, सो ब्लैक ह्यूमर जो है दैट इज बेसिकली लाइक इट इज सम काइंड ऑफ आइडिया जिसमें हम देखते हैं कि काइंड ऑफ ह्यूमर इज डिटेल देयर। तो ये ह्यूमर क्या है जो कि आज तक पहले वाले जितने भी ह्यूमरस वर्क थे उनसे बिल्कुल डिफरेंट थी, और इसमें हम एक आइडिया डेवलप करते हैं कि ये वो चीज़ है बेसिकली जो कि नॉन एग्जिस्टेंट थी आज तक से पहले वाले लिटरेचर में। इसे ब्लैक कॉमेडी भी कहा जाता है। दिस इज नॉट ओनली ट्रीटेड एज ब्लैक ह्यूमर बट ऑल्सो डार्क ह्यूमर, डार्क कॉमेडी, ब्लैक ह्यूमर, ब्लैक कॉमेडी, मॉर्बिड ह्यूमर भी कहा जाता है इसको, और गैलोज ह्यूमर भी इसका एक नाम है। सो बेसिकली ये क्या है, ये मॉर्बिडिटी से रिलेटेड उन चीज़ों को थोड़ा सा ह्यूमरस अंदाज में लेके चलना, और
कुछ लाइट सब्जेक्ट्स जो हैं उनको लेके चलना, जो जिनको सोसाइटी में टैबू वर्ड्स कहते हैं, उनको बेसिकली उनको इजहार करना, उनको डिस्कस करना। सो ये पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन बाद में इट वाज इंक्लूडेड। एंड देन इंटरटेक्सचुअलिटी। सो इंटरटेक्सचुअलिटी है जो ये भी ऑल्सो इट डेवलप्ड एज अ थीम। जी मुबीन एंड आरिफ, आप दोनों ने हाथ खड़े किए, जी बोलें। सर ये इंटरटेक्सचुअलिटी जो है ये क्रिटिसिज्म का थीम है, मतलब एक टेक्स्ट किसी बुक की और दूसरी बुक की कोई टेक्स्ट जो है उनके अंदर यानी कि क्या मीनिंग है, क्या एक दूसरे को इंटरप्रेट जी जी करें। जी जी, ये हमने क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म एक क्रिटिसिज्म क्या सब्जेक्ट हुआ पढ़ा इससे? था, लेकिन ये ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम एनुअल में ना स्किप करा देते हैं। मैंने खुद पढ़ने की कोशिश की थी, मुझे समझ तब भी नहीं आई, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे ये आइडिया हुआ कि इसका यही मतलब हो सकता है। जी जी, ये वही है जिसमें वी गेट टू नो कि दो रिलेशनशिप्स होते हैं जब भी हम एक टेक्स्ट को पढ़ते हैं। सो एक रिलेशनशिप है हमारे दरमियान और ऑथर के दरमियान, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और एक है टेक्स्ट के दरमियान और दूसरे टेक्स्ट के दरमियान वर्टिकल एक्सिस पे। सो ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये बेसिकली इंटरटेक्सचुअलिटी की हमें डेफिनेशन देता है, और दोनों एक्सिस जो हैं ये एम्फसाइज करते हैं कि कोई टेक्स्ट जो है वो बबल में एग्जिस्ट नहीं करता, और हमें एंड वी नीड टू रिकॉग्नाइज हाउ एग्जिस्टिंग वर्क शेप करंट टेक्स्ट एंड रीडिंग। उनकी बेस पे हम आने वाले टेक्स्ट को और रीडिंग्स को एनालाइज करते हैं। सो बेसिकली एक एनालिसिस, जिसे डिस्कोर्स एनालिसिस कह लें या क्रिटिसिज्म के अंदर कह लें, सो ये दैट इज दैट पार्ट कि उसमें एक रिलेशन है हमारे दरमियान और ऑथर के दरमियान कि हम उसको किस तरह समझ रहे हैं, फिर एक टेक्स्ट और दूसरे टेक्स्ट के दरमियान जिसको सामने रख के हम, यानी दो टेक्स्ट को सामने रख के उनका एनालिसिस करते हैं, और फिर बाकी टेक्स्ट को हम उसकी रोशनी में देखते हैं। ओके देन सर, थैंक यू। पास्टिश। So pastiche क्या है? Think of pastiche as a literary equivalent of a collage. जिससे collage होता है मुख्तलिफ pictures जोड़ी होती हैं. So it's not about creating something from scratch, but drawing on what already exists. इसमें कोई चीज नए सिरे से नहीं बनाई जाती, कुछ पुरानी चीजों को रिफर्बिश किया जाता है, मतलब इमिटेट किया जाता है बाकी टेक्स्ट को, जॉनरस को पैरोडी कह सकते हैं या ड्रेसअप कह सकते हैं, कि मुख्तलिफ गॉथिक नॉवेल्स, मेलोड्रामास को मिला जुला के एक नई चीज प्रेजेंट कर दी जाए जिसमें आपकी क्रिएटिविटी नहीं है, बट यू आर कमिंग अप विद सम न्यू वर्क विच इज अगेन अ मिक्सचर ऑफ सम अदर वर्क्स अगेन, जो कि ऑलरेडी जिन पे काम हो चुका है। देन मेटाफिक्शन। सो मेटाफिक्शन जो है विलियम एच गॉस ने एक 1970 अपने एसे में फिलोसफी एंड द फॉर्म ऑफ फिक्शन में फर्स्ट टाइम इसको यूज किया, मेटाफिक्शन को। सो मेटाफिक्शन जो है वो एक, इट इज 100% अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इट इज फिक्शन। सो इसमें बेसिकली क्या है कि इट सिग्नल्स द टेक्स्ट ऑफ और सिग्नल्स अ काइंड ऑफ टेक्स्ट दैट एम्फसाइजेस इट्स स्टेटस एज अ टेक्स्ट। यानी इसमें आप फिक्शन को एक बड़े लेवल पे लेके जाते हो, जिस तरह यानी फिक्शनल वर्क जो है वो बहुत ज्यादा लिखे गए, इससे पहले भी लिखे गए। हमने H.G. वेल्स का पढ़ा जिसमें वो टाइम मशीन की बात करता है, इनविजिबल मैन की बात करता है। सो मेटाफिक्शन जो है इसमें बेसिकली दिखाता है कि इट इज a form of fiction basically that emphasizes its own construct in a way that continually reminds the audience to be aware that they're reading purely a fictional work. कई वर्क्स होते हैं जिसमें राइटर इंटेंड नहीं कर रहा होता कि वो आपको बताए कि आप फिक्शनल वर्क पढ़ रहे हो। ये इस हद तक ऑब्वियस होता है फिक्शन के, आपको पढ़ते हुए भी आइडिया हो रहा था कि ये जो हम पढ़ें दिस इज प्योरली अ फिक्शन वर्क दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द रियलिटी। फॉर एग्जांपल द इनविजिबल मैन जो है वो इस नियत से नहीं लिखा गया कि आप उसे फिक्शन ही समझें, बट कुछ वर्क्स ऐसे लिखे जाते हैं कि आप उन्हें फिक्शन समझें और उनको समझें। देन सर इसका मतलब ये हुआ कि जी जी सर इसका मतलब ये हुआ कि ये सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ के उलट है, मतलब उसमें हम वो जो चीज रियल नहीं होती हम जी जी, उससे रियल उसमें एज्यूम कर राइटर रहे होते हैं। हमें वो जो डिसबिलीफ है उसको वो हटाना चाहता है, इसमें राइटर उसको हटाना नहीं चाहता। वेरी गुड एग्जांपल।
So phenomenon, I hope I am pronouncing correctly. So ये एक term थी जो कि coin की Aleister Fowler ने to refer to a specific type of fiction in which stories about the process of creation, जिसमें क्रिएशन की बात की गई, एक प्रोसेस ऑफ क्रिएशन की बात की गई. So according to Fowler, it is calculated to offer opportunities to explore the boundaries of fiction and reality, the limits of narrative truth. So वो जो बाउंड्रीज हैं जिसमें फिक्शन और रियलिटी की, उनके दरमियान में ये लिखा जाता है, और इट इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन एंड क्रिएशन मे बी ऑफ एनीथिंग. सो इसमें जो है कॉमन एग्जांपल्स में थॉमस कैरल्स की जो है सार्थोर रिजॉर्टर्स, ये उसकी एक एग्जांपल है. और इसमें लाइक जितना भी मॉडर्न लिटरेचर है उसमें कहीं ना कहीं ये एलिमेंट्स भी फाइंड के उससे यूज किया जा रहा है. टेम्पोरल डिस्टॉर्शन होता है, ये कॉमन टेक्निक है मॉडर्निस्ट फिक्शन में जो आजकल यूज हो रही है. देयर इज फ्रेगमेंटेशन and non-linear narratives are central figures or features in both modern and postmodern literature. So temporal distortion kya hai in postmodern fiction? It is used as in the variety of ways, often for the sake of irony. So irony के तौर पे भी इसको use किया जाता है. Distortions दिखाई जाती हैं time के हवाले से, कि time जो है उस हवाले से we get to know कि जो time है that is not clearly reflected. वो चीजें जो हैं उनके अंदर हमें वो प्रॉपर एक सीक्वेंस जिसे आप कहते हैं कि उसके अंदर we find कि it is a sort of distorted. ये बेसिकली उसी तरह की एक मूवमेंट, जिस तरह की मूवमेंट्स हमने बाकी पहले देखी आपके सामने जो मॉडर्न लिटरेचर में सामने आ रही थी. सो दैट इज वन ऑफ दोज थिंग्स. और ये जो मॉडर्न लिटरेचर की मैंने बात की कि इसको समझना मुश्किल हो जाता है. इसको इसलिए हम समझ नहीं सकते सही तरह क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स यूज किए जा रहे हैं. हालांकि हम इसी वर्ड में रहते हैं और उस वर्ड में रहने के बाद हम उन चीजों को नहीं समझ सकते, तो उस चीज का क्या फायदा, हालांकि पुराने वर्क्स को हम इजीली अंडरस्टैंड कर रहे हैं. सो इसमें बेसिकली टाइम जो हो गया, इसको एक फोर्थ डायमेंशन के तौर पे यूज किया जाता है टेम्पोरल डायमेंशन में या डिस्टॉर्शन में. और इसमें एक डिस्टॉर्ट, जिस तरह डिस्टॉर्ट का मतलब है कि टाइम को डिस्टॉर्ट कर देना, खराब कर देना. सो वो टेम्पोरल डिस्टॉर्शन टाइम को एक डिस्ट्रक्शन, जो कि मुख्तलिफ ड्रामाज में आपने अगर देखा होगा कि जिस यूनिटी ऑफ टाइम जिसको शेक्सपियर वॉयलेट करता था, इस तरह के सर्टेन थीम्स जो हैं आजकल के प्लेस के अंदर या मॉडर्न नॉवेल्स के अंदर मौजूद हैं. देन मैजिकल रियलिज्म या मैजिक रियलिज्म. मैजिक रियलिज्म क्या है? It may be literary work marked by the use of still, sharply defined, smoothly painted images of figures and objects depicted in surrealistic manner. So surrealistic manner में ये एक चीजें define की जाती हैं, और जो themes हैं और subjects are often imaginary, somewhat outlandish and fantastic and with a certain dream-like quality. So ये magical realism होता है जिसके अंदर हम magic भी एक include कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक ड्रीम लाइक क्वालिटी इसके अंदर मौजूद है. सो ये कुछ टर्म्स जो बड़ी ही कंफ्यूजिंग, बड़ी ही डिफिकल्ट हैं, इनको समझना थोड़ा सा हमारे लिए कई दफा बड़ा एक स्ट्रेंज हो जाता है. इसको हम मार्वेलस रियलिज्म भी कहते हैं. सो 20th सेंचुरी खास तौर पे जो फिक्शन है, लिटरेरी जॉनरा, उसके अंदर ये इंक्लूड होता है. और इसको बहुत सारे लोगों ने इस पेंटिंग स्टाइल्स के अंदर भी यूज किया, और एक लिटरेचर में इन स्टोरीज के अंदर या सुपरनैचुरल के साथ भी इसको अटैच किया गया. सो बेसिकली ये जो है एक रिगरस किस्म का एक स्ट्रक्चर है जिसमें वी फाइंड मैजिक काइंड ऑफ सिचुएशन, जिसको एक रियलिस्टिक मैनर में प्रेजेंट किया जा रहा हो. फिर टेक्नोकल्चर और हाइपर रियलिटी, कि कई जगह पे रियलिटीज को बड़ा ही एक हाइपर अंदाज में दिखाया जाता है, एक रियलिटी को एक्स्ट्रा रियल दिखाया जाएगा और उसको बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है. रियलिटी को एक हाइपर अंदाज में एक लाइक इतना भी ज्यादा वो एक ब्लंट नहीं होना चाहिए जितना ये लोग प्रेजेंट करते हैं. पैरानोया इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन इन विच यू हैव अ डिस्ट्रस्ट ऑफ पीपल. और आप मॉडर्न सोसाइटी का एक बड़ा थीम है कि आपको लोगों के अंदर डिस्ट्रस्ट है,
आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, उनको सही तरह उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारे ड्रामों में, प्लेज में, स्टोरीज में, शॉर्ट स्टोरीज और पोम्स के अंदर ये थीम भी अवेलेबल है। एंड देन मैक्सिमलिज्म, और उसके साथ है मिनिमलिज्म, जो हमारे पास एक और चीज। सो मिनिमलिज्म और मैक्सिमलिज्म, लिटरेरी मिनिमलिज्म को हम इस तरह करेक्टराइज कर सकते हैं कि एक सरफेस डिस्क्रिप्शन जहाँ पे रीडर्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक एक्टिव रोल in creation of a story. So the characters in minimalist stories and novels tend to be unexceptional, or the stories are slice of life stories. और minimalism जो है, it is differentiated from maximalism. So इसमें हम देखते हैं कि जो रीडर्स हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो स्टोरी के अंदर एक एक्टिव रोल लें। यानी इस तरह के उसमें वर्क्स लिखे जाते हैं कि विच इज नॉट ओनली रिटन बाय द रीडर बट ऑल्सो राइटर, बल्कि रीडर भी उसका एक एक्टिव पार्ट बनता है। ही टेंड्स टू नो कि इसमें क्या होने जा रहा है आगे, ही टेंड्स टू हैव अ फीलिंग, ही टेंड्स टू हैव एन आइडिया कि इसमें हम फर्दर मोर क्या चीज देख रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, व्हाट इज येट टू कम। तो मिनिमलिज्म जो है वो और चीजों को नीट और टाइडी बनाता है। मैक्सिमलिज्म जो है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। और पोस्ट मॉडर्निज्म जो है उसके अंदर maximalism is where it's at, because postmodernism does not stick to any hard and fast rules. Its text can be of any length. तो इसमें वो जो है मिनिमलिज्म में चूंकि हम टेक्स्ट को माइन्यूट लेवल पे देखते हैं, मैक्सिमलिज्म में हम उसको एक हैवी लेवल पे, एक बड़े लेवल पे देखते हैं, उसको उस लिहाज से एक एनालिसिस करते हैं उसका। एंड देन वी हैव पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, जो कि लिखा गया थ्योरी ऑफ पोस्ट कॉलोनियल के ऊपर, जिसमें कॉलोनियलिज्म का जिक्र है, जिसमें अमेरिका और खास इंग्लैंड जो है उसके जो अटैक्स थे और जो जगह उसने घेरी, फिर उसके ऊपर जो उसका असर था जो रहा उस टाइम में, उनके बाद वाले टाइम में, वो सारे नॉवेल्स जिसमें बहुत सारे नेम्स हैं। अहमद अली है, उसका ट्वाइलाइट इन दिल्ली, ओशन ऑफ नाइट। अहमद अली का ट्वाइलाइट इन दिल्ली सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर हनीफ कुरैशी, बहुत सारे वर्क्स हैं इसके, इसमें एटलीस्ट 1 or 2 शुड बी देयर जिनकी आपको समरी वगैरह कुछ आती हो। जुल्फकार घोष का जो है उसमें द मर्डर ऑफ अजीज खान, द कॉन्ट्रडिक्शंस और स्टेटमेंट अगेंस्ट कॉप्सेस। अतिया हुसैन है हमारे पास इसके अलावा इसके बेशुमार वर्क्स हैं, यू नेम इट, और इसमें लोग खत्म नहीं होंगे। सारा सुलेरी हैं, एंड देन आजम जमींदाद, एडम जमींदाद, तारिक अली, मुनीजा हाशमी, कामिला शम्सी, मोहसिन हामिद इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मौत स्मोक और द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, दे वेल कोटेड एंड वेल एक्सपेक्टेड नॉवेल्स जिनके हवाले से क्वेश्चनिंग हो सकती है। ताहिरा नकवी, ये सारे नेम्स हैं जो मैंने इसमें यहाँ पे ऐड कर दिए। सो दीज आर द पीपल हु कैन बी आस्क्ड टाइम एंड अगेन, जिनके हवाले से इनमें हर एक का कम से कम एक जो है, जितने नाम ये मैं आपको भेजूंगा, एटलीस्ट यू मस्ट बी हैविंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट देम। जी ये सारी मूवमेंट्स, ये जो क्वेश्चंस की तरफ आ रहा हूँ, कुछ जो मूवमेंट्स हैं उनको अल्टर किया गया। एंड जी, हुमैरा असलम हसनैन, यू वांट टू से समथिंग? Meanwhile, coming to the better part of literature, so let's go through Shakespeare. शेक्सपियर के 2 वर्क्स जो हैं वो हम 3 वर्क्स आज करेंगे इंशाल्लाह, और 2 वर्क्स हम उसे नेक्स्ट क्लास के लिए रखेंगे। Okay, so Macbeth, very interesting, very catching, and very unique kind of work.
No, we don't have to. There's a question about dates of the authors. No, आपको इन सब के नाम या डेट्स वगैरह ये जानने की जरूरत नहीं है. बाय द वे वी नो कि आजकल किसका वर्क पढ़ा जा रहा है, कौन कौन से राइटर्स इंपॉर्टेंट हैं. यू शुड नो द नेम, एटलीस्ट वन वर्क रिटन बाय देम, उसका थीम आपको आना चाहिए. देयर सो मेनी नेम्स इन कंटेम्प्रेरी लिटरेचर जिनको मैं इग्नोर करता गया हूँ, आप भी उनको इग्नोर कर दें अल्लाह का नाम लेके. जस्ट फोकस ऑन सम ऑफ देम. जो सम ऑफ देम हैं उनकी भी आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह जानने की जरूरत नहीं है. Okay, so Macbeth is a story about Macbeth, who was first a general and then he became a king. जो प्ले है ये शुरू होता है ट्रायो ऑफ विचेस से, यानी 3 विचेस जो हैं वो मिलती हैं मैकबेथ को एक मिलिट्री कैंप के पास, जहाँ पे स्कॉटिश किंग डंकन, उसको खबर मिलती है कि उसके जनरल्स मैकबेथ एंड बैंको they have defeated 2 separate invading armies, एक आयरलैंड की तरफ से जिसको मैकडोनाल्ड लीड कर रहा था और दूसरी नॉर्वे की तरफ से, so ये जिसको बैंको लीड कर रहा था. तो ये जो है इनको सॉरी बैंको ने लीड कर रहा था, बैंको इनको हराने में था. so ये जो आर्मीज आ रही थी इनको मैकबेथ और बैंको ने हराया, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि विचेस मिली इन्हें, और ये जो विचेस थी ये सुपरनैचुरल एलिमेंट्स हैं जो कि नॉर्मली यूज करता है शेक्सपियर. सो वी सी के ये जो विचेस हैं वो एक प्रोफेसी है. प्रोफेसी इज वेरी इंटरेस्टिंग कि मैकबेथ जो है वो थेन बनेगा. सो थेन इज अ रैंक इन स्कॉटिश नोबिलिटी, क्योंकि स्कॉटलैंड दिखाया गया, स्कॉटिश नोबिलिटी का एक बड़ा रैंक है, अरिस्टोक्रेटिक रैंक. और he will be made a thane of Cawdor के इलाके का, and eventually he will also become king of Scotland. So ये प्रोफेसी करती हैं witches. अब ये they ignore it the way we could ignore any such prophecy जिस पे हमें यकीन ना आ रहा हो. उसके बाद एक और प्रोफेसी भी इसके साथ होती है कि मैकबेथ का जो कंपेनियन है बैंको, उसकी लाइन में से स्कॉटिश किंग्स पैदा होंगे. ऑल्दो बैंको जो है he will never be a king himself, कि वो कभी किंग नहीं बन सकता. अच्छा, विचेस चली जाती हैं, गायब हो जाती हैं, और मैकबेथ और बैंको जो है वो इन प्रोफेसीज को यकीन नहीं करते इन पे, कि अचानक किंग डंकन के लोग आते हैं. अब किंग डंकन मैकबेथ का किंग भी है, उसका कजन भी है, रिलेटिव भी है. ओके जी. सो वो 2 जनरल्स भेजते हैं और उन्हें सॉरी वो आदमी भेजते हैं अपने कि इन दोनों जनरल्स का शुक्रिया अदा करो उन विक्ट्रीज में जो मिली, और मैकबेथ को बता दो कि उससे थेन बना दिया गया है काउडर का. सो ये बात बड़ी अचानक, वो जो प्रोफेसी हुई होती है फौरन प्रूव हो जाती है. तो मैकबेथ अचानक सकते में आ जाता है कि ये तो वाकई जो उन्होंने कहा वो हो गया. अच्छा, प्रीवियस थेन जो होता है उसने बिट्रे किया होता है तो उसको मार दिया जाता है. अब जी मैकबेथ जो है उसको ये पॉसिबिलिटी होती है कि जो बाकी जो विचेस ने कहा उसका क्या बनेगा, क्योंकि विचेस ने ये भी कहा कि मैकबेथ पहले थेन बनेगा और उसके बाद किंग भी बनेगा. तो वो जो है उसे वो सोचता है कि इसके बारे में वो क्या करे. तो वो डंकन को विजिट करता है और फिर वो दोनों प्लान करते हैं कि इनवर्सनेस जो कि मैकबेथ का कैसल है वो रात को वहां पे जाएंगे, खाना वहां पे खाएंगे और डंकन वहीं पे सोएगा. मैकबेथ अपनी वाइफ को लिख भेजता है कि डंकन आज हमारा मेहमान है, यानी किंग हमारा मेहमान है, उसके खाने पीने का सोने का बंदोबस्त किया जाए. और उसको ये भी बताता है अपने उस खत में कि जो जो हुआ. लेडी मैकबेथ जो है वो अपने हस्बैंड की अनसर्टिनिटीज को रिमूव करती है, भगाती है, और वो कहती है कि इससे चाहिए कि वो किंग बने, क्योंकि अब उससे सिचुएशन मिल रही है, उससे प्रोफेसीज हुई, उसका प्रोफेसीज की वजह से पहले वो थेन बन गया, तो मुमकिन है वो किंग भी बन सकता है, तो उसे मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए. तो वो कहता है कि डंकन का मर्डर कर देते हैं, लेडी मैकबेथ कहती है. तो जब मैकबेथ वहां पे आता है तो वो उसको सारा कुछ बताती है, परसुएट करती है, वो हेजिटेंट होता है, रिलक्टेंट होता है, लेकिन मान जाता है. कौन सा हस्बैंड है जो वाइफ की नहीं मानेगा. तो वो फिर लेडी मैकबेथ जो है वो प्लान करती है कि किस तरह उसको
मारा जाए, तो वो दोनों प्लानिंग में ये करते हैं कि जो दोनों चैम्बरलियंस जो गार्ड्स हैं उनके, डंकन के, उन्हें ड्रंक करेंगे और ताकि वो बेहोश हो जाएं, और अगले दिन वो इस मर्डर का यानी किंग के मर्डर का इल्जाम उन यानी वो जो गार्ड्स होंगे उन पे लगा देंगे, और मैकबेथ जो है वो उसके ऊपर किसी को शक नहीं जाएगा। ओके, डंकन जब सोया होता है तो गार्ड्स जो है वो ऑलरेडी शराब के नशे में होते हैं। मैकबेथ उसे स्टैप कर देता है, और उसके बाद ये होता है कि उसके बीच में कुछ सुपरनैचुरल एलिमेंट्स और ऑल्सो डैगर का एक विजन आता है जो कि मैकबेथ को डराता है। मैकबेथ रुकता है, लेकिन उसके बाद चूंकि उसके अंदर एम्बिशियसनेस, एक एम्बिशन होता है उसके अंदर जो कि इसका ट्रेजिक फ्लॉ है, उसकी वजह से वो फिर अपना काम कर गुजरता है। सो डंकन की जब अगले दिन डेथ जो है वो डिस्कवर होती है, तो मैकबेथ उन गार्ड्स को मार देता है कि इन्होंने कत्ल किया, या इनकी शराब पीने की वजह से किसी ने इस चीज का फायदा उठा लिया। बहरहाल किंगशिप जो है वो बड़ी आसानी से मैकबेथ को मिल जाती है, क्योंकि वो सेकंड सीनियर होता है और उसका कजन भी होता है। डंकन के जो बेटे थे मैल्कलम और डोनाल्पियन, वो वहां से इंग्लैंड और आयरलैंड भाग जाते हैं, यानी मैल्कलम इंग्लैंड भाग जाता है और डोनाल्बियन जो है वो फ्रांस आयरलैंड भाग जाता है। उसके बाद उनको ये होता है कि जिन्होंने डंकन को मारा वो हमें भी मार सकता है, तो उन्हें इस चीज का डर होता है। मैकबेथ इजीली किंग बन जाता है। अब उसे ये डर होता है कि विचेस ने एक और प्रोफेसी भी की थी कि बैंकों के जो हेयर्स होंगे, जो उसके वारिस होंगे, वो इक्तदार ले लेंगे, यानी वो जो है वो एक टाइम आएगा कि किंग बन सकते हैं। अब इस चीज से ये बड़ा डरा होता है कि बैंकों का क्या किया जाए। सो वो एक प्लान करता है कि एक खाना अरेंज करता है और उस पर अपने साथियों को बुलाता है, अपने जो उसके हवारी होते हैं, और उसमें ही बैंकों के मर्डर का प्लान करता है। सॉरी, सो उसमें वो क्या करता है जी कि एक एम्बुश के जरिए एक रॉयल फीस्ट पे जब बैंको आ रहा होता है उस पर हमला करवा देता है। बैंको मर जाता है, लेकिन उसका बेटा भागने में कामयाब हो जाता है जिसका नाम फ्लियंस है। सो मैकबेथ जो है वो बड़ा फ्यूरियस होता है इस बात पे कि अगर फ्लियंस के बैंकों से तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, असल इशू तो उसके बेटे का था जिसकी नस्ल में से किंग बनेंगे। सो वो होता है कि अब उसकी पावर इनसिक्योर है। फिर वहां पे उसी रात पे जब वो सारे लोग इसके गेस्ट बने होते हैं, खाना चल रहा होता है, तो बैंकों का गोस्ट उसको नजर आता है, जो कि उसका गिल्ट होता है बेसिकली मैकबेथ का। वो डर जाता है, और उसके बाद वो उसके जो साथी होते हैं वो भी डर जाते हैं उसकी हालत देख के, उसकी ये सिचुएशन देख के, मेंटल कंडीशन देख के। लेडी मैकबेथ बहरहाल सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करती है, और उसके बाद जो मैकबेथ है वो दोबारा से विचेस के पास जाता है उनको ढूंढने के लिए, ताकि उनसे वो असल हकीकत जान सके। अच्छा, वहां पे एक और सीक्वेंस वो स्पिरिट्स का आता है, और वो उसको फर्दर प्रोफेसीज देती हैं कि मैकडफ से बच के रहे, जो कि स्कॉटिश नोबलमैन है और मैकबेथ के किंग बनने को पसंद नहीं करता था। वो जो है और फिर वो कहते हैं कि मैकबेथ जो है वो तब तक नहीं मर सकता, या उसकी किंगशिप तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इसको कोई ऐसा बंदा ना मारे जो कि किसी खातून के जरिए पैदा ना हुआ हो। और जब तक जो बिर नाम का जंगल है, वो जो वुड्स हैं, जब तक वो चलती हुई उस डंकन के या जो इसका जो कासल है उस तक नहीं आएंगी, तब तक ये जिंदा रहेगा और इसका इक़्तिदार सेफ रहेगा। तो अब ये खुश हो जाता है कि यानी दोनों इम्पॉसिबिलिटीज हैं, जंगल भी चल नहीं सकता और हर बंदा एक औरत के जरिए ही पैदा होता है, तो वो उस वजह से यानी लाइक सुकून में आ जाता है। मीनवाइल जो है मैकडफ उसकी सारी फैमिली को ये मरवा देता है। मैकडफ उसके बेटों के साथ मिल जाता है पुराने किंग के, और वो फिर रिवेंज लेने आते हैं। अब जब वो रिवेंज लेने आ रहे होते हैं तो मीनवाइल जो उस बीच के अरसे में मैकबेथ बड़ा ट्रिनिकल बन जाता है, बड़ा जालिम बन जाता है और बड़ा पैरानॉइड होता है, और अपने जिसको ये दुश्मन समझता है उसको मारना शुरू कर देता है। लेडी मैकबेथ जो है वो स्लीप वॉकिंग की हैबिट हो जाती है उसकी, उसको इस सारे गिल्ट की वजह से नींद नहीं आती,
और वो उसी वजह से यानी उसकी डेथ भी हो जाती है, मर जाती है लेडी मैकबेथ। और जब वो दुश्मन आते हैं हमला करने के लिए, यानी ये जो फौज आती है हमला करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो जो बिरनम का जो जंगल होता है उसकी सारी की सारी वो जो वुड्स हैं उनको अपने ऊपर उन्होंने चढ़ाया होता है एज अ कैमोफ्लेज। सो वो उसके पीछे छुप के आ रहे होते हैं। जब मैकबेथ ये देखता है तो वो डर जाता है कि ये तो पहली प्रोफेसी पूरी हो गई कि जंगल चलता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। बहुत डरता है वो। फिर उसकी लड़ाई होती है, तो उस लड़ाई में पहली प्रोफेसी तो पूरी हो गई है। अब सेकंड प्रोफेसी रह जाती है कि उसमें फिर मैकडफ जो है वो बताता है कि वो खातून से, यानी ये इन्होंने बेसिकली अजीब सी बात की थी कि वो पैदा तो औरत से ही हुआ था, लेकिन सिजेरियन या सी सेक्शन के जरिए, सो वो नेचुरल बर्थ नहीं थी। सो उसमें फिर वो मैकबेथ को मार देता है और फिर उसके जो बेटे होते हैं किंग डंकन के, वो थ्रोन को एज्यूम कर लेते हैं। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ मैकबेथ। इसमें कुछ सिंबल थे, विजन्स और हेलुसिनेशंस, जिसमें जो उसको उसके गिल्ट का एहसास दिलाते हैं। ब्लड भी उसे गिल्ट का एहसास दिलाता है। स्लीप की इनकी नींद उड़ जाती है और ये वो इंसोम्निक हो जाते हैं। वेदर जो है वो उस तूफान और आने वाले खतरे की पेशेंगोई होता है। सीम्स हैं इसमें फेट एंड फ्री विल, अपीयरेंस एंड रियलिटी, फॉल्स फेस मस्ट हाइड व्हाट फॉल्स हार्ट डथ नो, लॉयल्टी है, एम्बिशन है, किंगशिप और tyranny है, trust and distrust है, और conflict of good and evil. So this all happens in Macbeth. So when I'll be sending you, you can read all these details जो कि इसके अंदर included हैं. Some things you can fill by your own self. That is your task. कुछ इनकी characteristics यहाँ पे मैंने आपको दी हुई हैं जो कि आप इसमें हर एक बंदे को जज कर सकते हैं कि where do they stand. This is the characterization of Macbeth, जिसमें ये सारी विचेस से लेके हर बंदा जो कि इसके अंदर इंक्लूडेड है, उनकी pictures, and these are important quotations from Macbeth. So they will be sent to you. Now, अब इसका I had planned to go through 3 plays of Shakespeare, लेकिन I guess हमें 2 करने पड़ेंगे, and then we will keep the rest till the next. Okay, एक छोटा सा प्ले, Winter's Tale, that is a tragicomedy. So ये भी important play है since it is included in Punjab University syllabus. अमार्शिया का क्वेश्चन हुआ है। अमार्शिया होता है कि ट्रेजिक फ्लॉ। हेलुसिनेशन जो है वो ट्रेजिक फ्लॉ नहीं होता। हेलुसिनेशन होता है जो कि आपको अचानक ख्याल आते हैं, आपको हेवले नजर आते हैं, आपका इमेजिनेशन इतना स्ट्रांग होता है कि वो चीजें आपको रियल नजर आती हैं। दैट इज हेलुसिनेशन। अमार्शिया ट्रेजिक फ्लॉ होता है जो कि एक बंदे की ऐसी कमजोरी जो उसे ले डूबती है। सो दिस इज द विंटर्स टेल। सो विंटर्स टेल बाय शेक्सपियर। लेओंटीज एक किंग है सिसिलिया का। हरमोनी उसकी क्वीन है जो प्रेग्नेंट है। पर्डिटा डॉटर है लेओंटीज और हरमोनी की, जो कि यानी इस वक्त अभी तक पैदा नहीं हुई। शी इज जब स्टोरी शुरू होती है तो उसी वजह से हरमोनी प्रेग्नेंट है। पोलेक्सिनस जो है इज किंग ऑफ बोहेमिया और लेओंटीज का बड़ा अच्छा दोस्त है। फ्लोरिजल ये सन है पोलेक्सिनस का। कैमिलो एक ऑनेस्ट सिसिलियन नोबल है। एंटिगनस एक सिसिलियन लॉर्ड है। पॉलिना एक नोबल वुमेन है और एंटिगनस की वाइफ है। शेफर्ड जो है वो एक ओल्ड एंड ऑनरेबल शीप टेंडर है। और द क्लाउन जो कि हमेशा की तरह वो जो एक कॉमिक रिलीफ के लिए मौजूद होता है। सो दिस इज द स्टोरी, दिस इज द कैरेक्टराइजेशन। अच्छा, स्टोरी शुरू होती है किंग लेओंटीज से जो सिसिलिया का है। वो अपने फ्रेंड किंग पोलेक्सिनस जो बोहेमिया का है उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो अपना स्टे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें। वो उसे मिलने आया था बोहेमिया से सिसिलिया में। दोनों किंग्स हैं, एक सिसिलिया का एक बोहेमिया का। सो वो बोहेमिया का जो किंग है वो जाना चाहता है, तो सिसिलिया का किंग लेओंटीज उसे रुकने के लिए कहता है। तो पोलेक्सिनस जो है वो कहता है कि पहली मैं बड़े अरसे से यहाँ पे हूँ, 9 महीने हो गए मुझे,
और मेरा जो मुल्क है उसके काम काज रुके होंगे तो मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन जब लेओंटीस की प्रेग्नेंट वाइफ हरमाइनी जब उसे प्लीड करती है कि रुक जाओ, तो वो थोड़ा सा रुक जाता है। अब लेओंटीस को थोड़ा सा जो है ना शक होना शुरू होता है कि ये दोनों एक दूसरे के करीब हैं, मेरे कहने पे नहीं रुका, यार मेरा है लेकिन कहने पे मेरी बेगम के रुक रहा है, तो ये क्या चल रहा है सारा सिलसिला। वो इन चीजों पे बड़ा सोचना शुरू कर देता है। अच्छा, वहां पे फिर लाइक उसको ये भी होता है कि अब 9 मंथ से ये इधर है, तो ये जो मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मे बी वो इन दोनों की आपस की कोई चाल हो, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ गलत हुए में। सो लेओंटीस जो है वो ऑर्डर देता है कि यानी वो कन्विंस हो जाता है कि दोनों लवर्स हैं, और वो ऑर्डर देता है अपने रॉयल फ्रेंड को, रिटेनर को, कैमिलो को, कि बोहेमियन किंग को जहर दे दे। कैमिलो जो है वो अच्छा होता है, उसे पता होता है कि किंग बड़ा जज्बाती फैसला कर रहा है। वो पोलिक्सिनिस को बता देता है कि तुम्हारे साथ ये होने जा रहा है, और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं सिसिलिया, जो कि बोहेमिया के सिसिलिया से चले जाते हैं बोहेमिया। अब इसके स्केप पे वो और गुस्से में आ जाता है, और उसको लगता है कि ये वाकई ही अ, ठीक बात है, ये वाकई यानी इनके आपस में अफेयर था। लेओंटीज अब पब्लिकली अपनी वाइफ को एक्यूज कर देता है इनफाइडेलिटी का, और डिक्लेयर करता है कि जो बच्चे इसने उठाया हुआ है वो भी इलेजिटिमेट है, और वो उसको प्रिजन में फेंक देता है। और फिर उसके जो नोबल्स होते हैं साथी, वो सारे प्रोटेस्ट करते हैं, तो ये मजबूर हो जाता है लोग किसी को ओरेकल ऑफ डेल्फी पे भेजने के लिए, टू ब्रिंग द एग्जैक्ट न्यूज के असल में हुआ क्या था, ताकि उसके सस्पिशंस बाकियों के भी सही हो जाए। क्वीन जो है एक बेबी गर्ल को जन्म देती है। अब वो जो बेबी गर्ल है उसकी लॉयल फ्रेंड क्वीन की, जो पॉलिना, जो एंटेगनस की वाइफ है, वो किंग के पास लेके आती है कि शायद अपनी औलाद को देख के इसका दिल मेल्ट हो जाएगा। लेकिन वो और गुस्से में आता है, और वो पॉलिना के हस्बैंड एंटेगनस को कहता है कि इस बच्ची को ले जाओ और इसे मार दो, कहीं पे फेंक दो। अच्छा, एंटेगनस लेके चले जाता है बच्ची को। इतनी देर में खबर आती है डेल्फी से कि हरमाइनी और पोलिक्सिनिस दोनों इनोसेंट हैं, और वो बच्ची लेओंटीस की है, कुछ ऐसा गलत नहीं हुआ। और ये कहती है कि लेओंटीस के पास कोई हेयर नहीं होगा जब तक उसकी बेटी मिल नहीं जाती। अच्छा, जैसे ये खबर मिलती है तो लेओंटीस का बेटा मेमेलस, जो कि अपनी माँ की वजह से बड़ा परेशान होता है, वो उसके दुख में कि उस पर क्या इल्जामात लगे, फिर उसकी जुदाई, उसमें बीमार होकर मर जाता है। हरमाइनी जो है वो ये सुन के एक सदमे में चली जाती है, और पॉलिना उसको उठा के ले जाती है, और बाद में वो खबर देती है कि क्वीन भी मर गई, और उसका जो हस्बैंड है यानी किंग, वो हार्ट ब्रोकन और रिपेंटेंट होके बैठ जाता है। बेटा भी मर गया, बेटी को खुद फेंक दिया, वाइफ भी मर गई। अब जो किंग है वो बेचारा कहीं का नहीं रहता। अच्छा, एंटिगनस के साथ क्या होता है, जो बेटी को लेके जाता है, वो एक बेटी को लेके बोहेमियन कोस्ट पे जा रहा होता है, क्योंकि दोनों इलाके साथ साथ होते हैं। तो ये होता है कि वहां पे एक हरमाइनी जो है, उसे उसके ख्वाब में आती है उस टाइम में, और उसे कहती है कि इस गर्ल का नाम पर्डिटा रखा जाए, और वो उसमें उसे कहती है कि सोना ले ले और उसकी बेटी को छोड़ दे। और फिर वो उसके बाद एंटेगनस जो है उसको एक बेयर अटैक कर देता है, और बेयर के अटैक के बाद पर्डेटा जो है वो एक शेफर्ड के पास आ जाती है। शेफर्ड उसको पालता है। 16 साल गुजर जाते हैं। सो दिस इज यूनिटी ऑफ टाइम, जिसको वो बेसिकली वायलेट करता है कि 16 साल गुजर गए। और फिर पोलिक्सिनिस का बेटा प्लेंस फ्लोरिजल, ये बड़ा होता है, वो आता है इस कोस्ट पे, तो शेफर्ड की बेटी यानी जो अपेरेंटली पर्डिटा है, उससे उसको प्यार हो जाता है। वो दोनों अक्सर मिलना शुरू कर देते हैं, और वो मोहब्बत उनकी बढ़ती रहती है, मुलाकातें बढ़ती रहती हैं। फिर उसका फादर और कैमिलो वो एक दिन डिस्गाइज करके चल रहे होते हैं मुल्क में इधर उधर, कि हमें पता लगे मुल्क के हालात, तो वो देखते हैं फ्लोरिजल और पर्डिटा की आपस के ताल्लुकात, और वो डिस्गाइज से बाहर आते हैं, और उसको ऑर्डर देते हैं कि वो आज के बाद उस लड़की को कभी नहीं देखेगा, क्योंकि उसको लगता है कि शेफर्ड की बेटी है, कहाँ मेरा बेटा मुंह मारा। बहरहाल कैमिलो जो है वो उसके बाद यानी यानी उसको फ्लोरिजल और पर्डेटा वो क्या करते हैं, वहां से भागते हैं, और मौका पाते ही वहां से सिसिलिया आ जाते हैं। अब सिसिलिया में आने के बाद वहां पे
वो आके मिलते हैं किंग से। अब किंग जो है बड़ा खुश होता है अपने पुराने दोस्त के बेटे को देख के, बड़ी उसकी रिस्पेक्ट करता है, इज्जत देता है उसे। वो नहीं बताता उसे परडेटा कौन है, वो ये कहता है कि वो डिप्लोमेटिक मिशन पे है। मीनवाइल पोलिक्सिनिस और कैमिलो भी वहां पे आ जाते हैं, और वहां पे आके जो है पता चलता है कि परडेटा जो है वो उसकी लेओंटीस की बेटी है, शेफर्ड को मिली थी। और ये भी पता लग जाता है कि ये यानी फैमिली किसी हद तक यूनाइटेड हो गई। और फिर यानी एंटायर कंपनी जो है उसको पॉलिना बुलाती है अपने घर में, जो कि इनकी पुरानी मुलाजिम है। तो वहां पे हरमाइनी का एक स्टैचू होता है जो कि रिसेंटली फिनिश हुआ होता है। तो इस स्टैचू को देख के रोना शुरू हो जाता है लेओंटीज अपनी वाइफ को देखने के बाद। और फिर ये होता है कि स्टैचू जो है वो लाइफ में आना शुरू हो जाता है, यानी उससे जिंदगी मिलना शुरू हो जाती है, और हरमाइनी कम्स बैक टू लाइफ। सो ये एक अजीब सीन होता है, एज इफ शी नेवर डाइड, कि वो मरी नहीं थी। ये एक तरह से किंग को सजा दे रहे थे। तो ये देखें, 16 साल सजा चलती रही, सिर्फ वो बेटा बेचारा मर गया, बाकी सारे के सारे आपस में इकट्ठे हो गए। पॉलिना और कैमिलो की एंड में शादी हो जाती है, और ये स्टोरी एक हैप्पी एंडिंग पे खत्म होती है। सो थीम्स जो हैं, लॉयल्टी, फाइडेलिटी एंड ऑनेस्टी, ये इसके मेजर थीम्स हैं। फ्रेंडशिप एंड लव, यूथ, एज एंड टाइम, एंड कंपैशन, सफरिंग। सो ये मेजर थीम्स हैं इस तमाम तर स्टोरी में। So I guess that is enough for today. For tomorrow, we'll be keeping some more plays of Shakespeare. मजीद 3